Hello everyone. So in 11th science biology we will start with chapter number 6, that is in biomolecule. Biomolecule 1. So in 11th science we have two chapters about the biomolecule, that is in chapter number 6 and chapter number 7. Chapter number 6 is known as in biomolecule 1 and chapter number 7 is known as in biomolecule 2. Okay, so before we start the chapter, you should understand the term biomolecule. So the biomolecule is the term which is made up of in two terms, that is in bio and molecule. So what is the meaning of bio? So at the starting of an, we can say, biology subject, I have told you that the bio, that means a living organism. Okay, bio का मतलब क्या होता है? Living. And what is the molecules? Molecules, or we can say substances. Okay, so whatever the molecules which is found in the living organisms are generally considered as in biomolecules. Okay, so our body or human being's body or any organism's body is made up of a cell. And cell will combine and forms the tissue combines and forms the organs forms combines and forms an organ system, and all the organ system compiles and forms the organisms. Okay, so the basic unit of any organism is a cell. So cell is having in various type of components, is having in various type of molecules. Okay, so carry out a specific function which is known as a metabolic activity. Okay, तो हमारे अंदर या तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ओके, एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट्स व्हाई दिस केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एन बायोकेमिकल रिएक्शन, और इट इज आल्सो नोन एज एन मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो ये जो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस है या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है. सो दिस मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, व्हिच इज नोन एज एन बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होंगे ऑर्गेनिक और दूसरे होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके, so inorganic substances क्या होंगे? Generally water है which is known as an inorganic substance. Then mineral salts. Mineral salts यानी कि ये जो elemental salts होते हैं, for example कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. So these are, you can say, mineral salts. Okay, so these are known as an inorganic molecules. Second one which is known as an organic. Okay, so the molecule which is made up of in carbon, hydrogen, oxygen. Okay, ऐसे molecules जो किससे बने होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होंगे. This type of molecules are known as an organic molecules. So generally here this carbon makes the bond with an hydrogen, carbon makes the bond with an carbon, carbon makes the bond with an oxygen. Okay, so on this way this type of molecules which is formed, and this type of molecules are known as organic molecules. Okay, so the example of an organic molecules in our body, that is a carbohydrate, protein, lipid, vitamins, hormones. Okay, so these are certain organic molecules which is found in the human body or organisms. Okay, so we will start the first, that is an inorganic molecules, and one of the major inorganic molecules, that is an water. Okay, जिसको क्या बोलेंगे हम? Water, which is made up of two elements, that is hydrogen as well as oxygen. दो elements से बना होगा. किससे बना है? हाइड्रोजन as well as ऑक्सीजन से बना है. Okay, so you know a general property of a water. आपको जनरल प्रॉपर्टी पानी में उसकी पता है कि पानी है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, यानी कि ऑर्डरलेस होता है. ओके,
देन इट इज अ टेस्टलेस, यानी कि आप अगर पानी को चखते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक उसका टेस्ट नहीं होता है, इट इज अ टेस्टलेस। ओके, देन इट इज एन कलरलेस, पानी का कोई भी स्पेसिफिक है वो कलर नहीं होता है, पानी इज एन वाटर इज एन कलरलेस। ओके, सो इट इज एन जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एन वाटर। सो इन एनी लिविंग वाटर इज एन वी कैन से a major liquid component of an living organism। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से सबसे ज्यादा जो भी लिक्विड कंपोनेंट देखने को मिलता है तो वो कौन सा है, पानी। सो वाटर वी कैन से इज a mother liquid of any liquid molecules। okay, it is a mother of any liquid molecules। so generally in living organism water present, that is 65% of water is present in any living organism or more, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। so around 65% of water is present in any living organism। if we count a cell, अगर हम सेल की बात करते हैं तो उसमें कितने परसेंटेज होंगे वाटर के, that is 70 to 90% of water is present in a specific living cell। okay, और अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग की बात करें then in human being around 55 to 70% of water is found in the human body। okay, तो इतना ज्यादा पानी की उसकी जरूरत है। so obviously पानी की जरूरत है क्योंकि जो वाटर है it play a many role in any organism। कितने सारे फंक्शंस है, कितने सारे काम है वो पानी परफॉर्म करता है। जनरली जो वाटर है उसका फॉर्मूला है वो कौन सा है, H2NO, understood, हाइड्रोजन and oxygen combined forms an water that is known as an H2O। and generally आपने देखा भी होगा कि ये जो वाटर है it can be in a 3 state, 3 स्टेट में हो सकता है। एक तो मेजॉरिटी वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इट कैन बी इन अ सॉलिड स्टेट, हम आइस जिसे बोलते हैं, एंड इट कैन बी इन अ गैस फॉर्म जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं। ओके, सो वाटर कैन बी फाउंड इन द 3 फॉर्म्स और 3 स्टेट्स ऑफ एन वाटर कैन बी सीन, दैट इज अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। ओके, so as we know in any living organism, in human being, in any living cell, the majority of water is present। okay, so water playing in many function in any living organism। so what are the important function, what are the important properties of water? okay, so first one, that is an water act as an efficient solvent। efficient solvent, why the water is known as an efficient solvent? because most of the molecule or most of the substances can be dissolved in water। ओके, यहाँ पर क्या है, ये जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा पानी ही ऐसा लिक्विड है कि जिसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, कितने सारे सब्सटेंसेस है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, और कोई भी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द वाटर इज नोन एज एन एफिशिएंट सॉल्वेंट फॉर एनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। Next property, that is water act as an excellent transport medium। why this known as an excellent transport medium? because we know that in our body many substances are there which is going to transfer from one place to another place। okay, कितने सारे ऐसे substances होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है for their work, for their function। तो ऑब्वियसली उसके पास पैर तो नहीं होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो वो जो ट्रांसफर है वो कौन करवाता है, वाटर। सो वाटर इज इन अ लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसकी वजह से ये जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफर हो सकता है, और उसके साथ कितने सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, एंड दैट्स व्हाई this water is act as an excellent transport medium। the best example of we can say substance which can transported from one place to another place, that is an oxygen as well as carbon dioxide। okay, so oxygen जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है लंग्स में जाता है, और फ्रॉम द लंग्स इट विल वी कैन से स्प्रेड आउट इन होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में वो फैल जाता है। तो किसकी मदद से वो ट्रांसपोर्ट होता है, बाय मींस ऑफ एन वाटर। सो वाटर इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन CO2
from the body to the lungs. Okay. Next property of water, that is water is mainly polar in nature. Okay, so this is a very important property of a water, that is water is generally in polar in nature. Okay, so what is the polarity of an we can say water? So this is a structure of water. ये ऑक्सीजन है, ये एक और दूसरा H, यानी कि H2 and O. दो H and एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ एन वाटर. ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, दे आर बाउंडेड विथ अ स्पेसिफिक बॉन्ड व्हिच इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, सो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का जो बाउंडेड होता है, दे आर कोवैलेंटली बाउंड टू ईच अदर, और उसकी जो लेंथ होती है जो बॉन्ड की, व्हिच इज 95.84 पाइकोमीटर. ओके, सो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ a same molecule is in 95.84 picometer, and the angle which is formed by the H2O molecule is in 104.45 degree. Okay, so in this way this H2 and O are arrange themselves by binding with hydrogen and oxygen covalently. Now here this oxygen bears a partial negative charge and hydrogen bears a partial positive charge. ओके, ये जब H2O मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है? दैट इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये सभी मॉलिक्यूल में सेम ही होंगे, पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा. ओके, सो this hydrogen which is having a partial positive charge, oxygen having a partial negative charge, they are having ability to bind with an other oxygen as well as hydrogen of other molecule of water. Okay, so this is a one molecule of water. यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल है, दिस वन इज द थर्ड वन. These molecules of a different molecules of water is bounded by each other. ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है. ओके, दिस हाइड्रोजन कैन मेक द बॉन्ड विथ दिस ऑक्सीजन. ओके, दिस हाइड्रोजन कैन मेक द बॉन्ड विथ दिस ऑक्सीजन. ओके, सो लाइकवाइज बिकॉज ऑफ this partial positive and partial negative charge, this is known as a polarity nature. This is known as a polarity of a water because it is having a specific charge. So this partial negative charge and partial positive charge is responsible for binding this water molecule with an other water molecule as well as to the other substances. Okay, and that's why this water molecule is act as an efficient solvent, क्योंकि उसके पास चार्जेस होने के कारण दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं और उस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, अब ये जो हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये जो वाटर है दे आर इन अ लिक्विड फॉर्म. ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिसके कारण वाटर इज ऑलवेज इन अ लिक्विड फॉर्म, और वो जो लिक्विड फॉर्म वाला वाटर है उसके अंदर के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर बाउंडेड विथ ईच अदर. ओके, कोई फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा पानी के अंदर. ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ एन बॉन्ड व्हिच इज नोन एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दिस इज a main property of a water. Polar in nature, because of the polarity, water generally found in the liquid state, as well as because of the polarity, water act as an efficient solvent. Okay, water कितने सारे जो substances है वो water में dissolve हो सकते हैं by binding them. Next one, that is in water is having high specific as well as latent heat. So what is specific heat as well as latent heat? Specific heat, that is an temperature needed by water or temperature required to, or we can say energy
energy required to raise the temperature of an water by 1 degree centigrade. तो अगर आपके पास पानी है, अगर आपको एक डिग्री टेम्परेचर है उसका बढ़ाना है, तो जितनी एनर्जी लगती है, ओके, सो दिस हीट और दिस एनर्जी इज नोन एज एन स्पेसिफिक हीट. And what is the latent heat? Latent heat, that is an energy required by water to change the state, to change the form of an water. ओके, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा फॉर्म है वाटर का चेंज हो जाता है. दैट इज अगर सॉलिड है उसमें से गैस बनेगा, लिक्विड है उसमें से सॉलिड बनता है. तो वो जो स्टेट पूरा है वाटर का, वो चेंज करने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत लगती है, या तो जितना टेम्परेचर या तो जितनी हीट लगती है, दिस इज नोन एज एन लेटेंट हीट. ओके, तो यहाँ पर अगर पानी का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो उसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, हाई स्पेसिफिक हीट. ओके, और अगर उसको उस पानी का टेम्परेचर, उसका जो स्टेट है वो भी चेंज करना है, यानी कि आपको लिक्विड में से सॉलिड या सॉलिड में से गैस, लिक्विड में से गैस, तो ये सारे जो चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी जो हीट चाहिए वो भी बहुत ही ज्यादा होगा. अंडरस्टूड? क्योंकि हमें पता है कि जो बाहर रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ओके, वो जल्दी से अपना जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करते हैं. दे आर ऑलवेज इन अ लिक्विड स्टेट. भले ही हमारा वेदर है वो चेंज होता है, यानी कि सर्दी भी आती है, समर आता है, विंटर आता है. तो समर में ऑब्वियसली धूप ज्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. विंटर में टेम्परेचर है वो कम होता है. फिर भी ये जो पानी है, जो पॉन्ड्स है, रिवर है, उसका जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है. ओके, क्योंकि उसको इतने टेम्परेचर जो फर्क पड़ता है वेदर के अंदर, एनवायरनमेंट में, उसके टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है. उसको उसका स्टेट चेंज करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है और टेम्परेचर चेंज की जरूरत पड़ती है. ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज the water has a high cohesive force. So water has high cohesive force. What is a cohesive force? The one water molecule can bind with another water molecule, other water molecule can bind with another water molecule. So likewise, each and every water molecules can bind with each other. Okay? तो जहाँ पर जो फर्स्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल जाएगा उसके साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जाएंगे. So this type of a force is known as a cohesive force. So this water, the binding of one water molecule to another water molecule is known as a cohesive force. तो ये जो cohesive force है वो कहाँ काम आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? ड्यूरिंग एन ascent of cell. ascent of cell क्या होता है? ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें पता है कि प्लांट्स में वाटर है ऑब्वियसली कहाँ होता है? नीचे होता है, जमीन के अंदर वाटर होता है जो कि प्लांट से एब्जॉर्ब करता है. प्लांट्स के रूट है वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और वो पानी जो लीफ होता है, यानी कि प्लांट की टिप होती है, वहां तक पहुंचता है. ओके, सो मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर फ्रॉम रूट ऑफ द वाटर टू द लीफ ऑफ रूट ऑफ द प्लांट टू द लीफ ऑफ प्लांट. दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज एन ascent of cell. ओके, तो उसमें कौन सा फोर्स है वो हेल्प करता है पानी के अंदर? दैट इज एन कोहेसिव फोर्स. एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा वो भी उसके साथ साथ जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एन कोहेसिव फोर्स. नेक्स्ट वन, दैट इज एन डेंसिटी. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डिपेंड्स ऑन मेनली टू फैक्टर्स, दैट इज एन dissolved salt as well as temperature. If the salt dissolved if the salt is high in a specific water, then we can say the density is high. And if the temperature है वो वेरी कर सकता है. जैसे जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आएगा, the density of an water becomes increases. तो सबसे ज्यादा कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी? दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा, at that temperature the water is having the highest density. Next one, that is water has a high viscosity. Okay, and because of this property, water has a high viscosity, and because of high viscosity, whatever the planktons
ओके, विच इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कहीं पर भी पॉन्ड्स है तो उसमें प्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। वो फ्लोट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पानी में उसकी विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। ओके, सो दिस zooplankton or we can say phytoplankton are float freely on the water because of the high viscosity, और उसको कोई भी शॉक नहीं लगता है मैकेनिकल बाहर का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज एन वाटर हैज एन high capacity to conduct and heat। okay, we know that water is a good conductor of an electricity। okay, तो हमारे अंदर पानी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से सभी जगह पर सेम ही रहता है, बिकॉज ऑफ वाटर इज एन हाई कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और वी कैन से हीट। तो हीट है वो पूरी बॉडी के अंदर हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से अच्छा होगा और वी कैन से सिमिलर ही होगा पूरी बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ एन 3D फॉर्म। Water is responsible for the maintenance of 3D forms of any macromolecules। और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे अंदर मेनली 4 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, उसके स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कौन करके रखता है, दैट इज एन वाटर। ओके, सो वाटर हैज एबिलिटी टू मेंटेन द